ملتان کے علاقے نون چوک ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر 2 میڈیکل سٹورز کے دکانداروں کو لوٹ لیا۔ چور 1 لاکھ روپے سے زائد نقدی سمیت 15,000 روپے مالیت کی نشہ آور ادویات دے کر فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں تھانہ نیو ملتان کے علاقے نون چوک پر جو ہے وہ 2 میڈیکل سٹوروں پر جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے واردات ہوئی ہے۔ نامعلوم ڈاکو جو ہے وہ اسلحے کے زور پر جو ہے وہ فارمیسی مالکان کو جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں۔ کیا کیا وارداتیں کی ہیں، کتنی نقدی اور کیا سامان لے کے گئے ہیں، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیسن کا جو مارکیٹ کے یہاں پر دکان کے جو مالک ہیں وہ میڈیکل سٹور کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ رات 2 بجے 1 بجے کا ٹائم تھا، 2 تاریخ تھی، 2 نامعلوم افراد اسلحے کے زور پہ داخل ہوئے ہیں دکان میں، اور وہ تقریباً وہاں سے 60,000 روپے کیش لے گئے ہیں، اور ایک دوسری فارمیسی سے 60,000 روپے کیش اور 15,000 کی نشہ آور ادویات لے کے ساتھ اپنے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ افسران بالا ہمیں تحفظ فراہم کرے تاکہ ہم یہاں پہ مطمئن ہو کے کاروبار کر سکیں اور لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کر سکیں۔ مارکیٹ کے تاجر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک مین چوک ہے نون چوک، جہاں پر 2 فارمیسیاں اور دونوں فارمیسیوں کو لوٹا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، یہ جو چوری ہوئی ہے اس سے فارمیسی والے بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور پریشان ہوئے ہیں، تو ہماری گزارش ہے پنجاب پولیس حکمران سے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو چاہیے کہ ان کو کوئی پروٹوکول یا ان کا حساب کیا جائے، کیونکہ ہمیں جب تک انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ ایک تو ہم گورنمنٹ سے ویسے ہی پریشان ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے، کیونکہ کاروبار ویسے ہی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ہی کاروبار ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے۔ جو فارمیسی مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کیا جائے، اور جو انہوں نے رقم لوٹی ہے، میڈیسن لوٹی ہے، وہ جو ہے برآمد بھی کرائی جائے، اور یہاں پر جو ہے ان کو تحفظ جو ہے وہ بھی فراہم کیا جائے، اور گشت جو ہے وہ پولیس کی وہی بڑھایا جائے۔ مزید جو ہے ان کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ احمد خان آپ کا۔ ڈیرہ غازی خان کی سخی سرور چیک پوسٹ پر سمگلنگ کی کوشش ناکام، بلوچستان سے ملتان جانے والی بس سے بھاری مقدار میں نان کسٹم پیڈ سگریٹس برآمد، بس کے خفیہ خانوں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹس کی 309 جو ہے وہ اس میں باکسز برآمد ہوئے۔ پولیس نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد برآمد شدہ سامان مزید کارروائی کے لیے کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی سخی سرور چیک پوسٹ پر سمگلنگ کی کوشش ناکام، بلوچستان سے ملتان جانے والی بس سے بھاری مقدار میں نان کسٹم پیڈ سگریٹس برآمد، بس کے خفیہ خانوں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹس کے 309 باکسز برآمد ہوئے۔ پولیس نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد برآمد شدہ سامان مزید کارروائی کے لیے کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ رحیم یار خان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چوک پٹھانستان میں 2 ڈیری پروڈکشن یونٹس پر چھاپا، 140 کلو مزیر صحت ملک کریم تلف کر دی گئی، اور اتھارٹی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چوک پٹھانستان میں 2 ڈیری پروڈکشن یونٹس پر چھاپا، 140 کلو مزیر صحت ملک کریم تلف کر دی گئی۔ اتھارٹی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں، اور اصلاح تک پروڈکشن یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رحیم یار خان کے چوک پٹھانستان میں 2 ڈیری پروڈکشن یونٹس پر چھاپے، رحیم یار خان میں بھاری مقدار میں ناقص کریم برآمد کر لی گئی اور موقع پر تلف کر دی گئی۔ قانون کی خلاف ورزی پر 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، یونٹس کی پروڈکشن اصلاح تک معطل کر دی گئی ہے۔ ملاوٹ مافیا سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چوک پٹھانستان میں 2 ڈیری پروڈکشن یونٹس پر چھاپا، 140 کلو مزیر صحت ملک کریم تلف کر دی گئی۔ ملتان کے اہم علاقے عبدالی روڈ پر فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے غیر فعال، فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے شہری صاف پانی سے محروم، علاقہ مکینوں کو پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان کے اہم علاقے عبدالی روڈ پر فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے غیر فعال،
फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी से महरूम। इलाका मकीनों को पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। आपको बता रहे हैं मुल्तान के अहम इलाके अब्दाली रोड पर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों को पानी के हुसूल के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अलिशबा आसिफ से। अलिशबा आसिफ से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान के अहम इलाके अब्दाली रोड पर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी से महरूम हो चुके। अलिशबा आसिफ से राब्ता बहाल हुआ है। जी अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है काफ़ी अरसे से बंद है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। अब्दाली रोड पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो 5 साल से पिछले बंद है और इसके पीछे ही एक सरकारी स्कूल भी है। जो बच्चे हैं जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उनके लिए भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि जब ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम बनाया गया था कि बच्चों को भी ये सहूलत फराहम करेगा और यहाँ पे जो इर्द गिर्द के इलाका मकीन हैं, जो दुकानदार हैं, रिहायशी हैं, उनको भी सहूलत फराहम करेगा। मगर पिछले 5 साल से लगता है इंतजामिया इसे बनाकर भूल गई है। और अगर मैं कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे जो है ताले लगे हुए हैं और लोग जो हैं यहाँ पे परेशान है। अगर साफ पानी भरना है तो दूर जाते हैं। भाई आप यहीं पे रहने वाले हैं, बताएं क्या परेशानी होती है दूर जाते हैं? परेशानी ये है, फिल्टर पानी यहाँ बहुत तंगी हो रही है। ठीक है, पूरी मार्केट भी जाती है, मार्केट वाले सारे जा रहे हैं। आजकल दूर जाकर बनना पड़ता है। ये जब से बनाया जब से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ये शोबाजी के लिए दिखाया गया है। डिस्प्ले ऐसे बना दी जैसे कोई दिखाने के लिए लोगों को बना लिए। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी हैं दुकानदार बेचारे तंग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ पानी की फराहमी के लिए यहाँ पे जो है दुकानदार परेशान हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया तो गया मगर इसे फॉल ही नहीं किया गया, तो क्या ही फायदा इस फिल्ट्रेशन प्लांट का। ये बहुत बड़ी एक मार्केट है इधर इस रोड पे, जहाँ साफ पानी ना होने से दुकानदारों को कई फासला तय करके जाना पड़ता है साफ पानी भरने के लिए। इसके पीछे स्कूल है और उसके पीछे एक मोहल्ला भी है, तो यानी 3 जगह के लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। उन्हें साफ पानी की जो फरहमी है वही नहीं मिल रही। शहरी परेशान है, दुकानदार परेशान है। फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने से क्या मसाइल हैं भाई यहाँ पे? फॉलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। इसको बंद होने में दुकानदारों को बहुत परेशानी है और साथ में ना गर्मियों में खास करके ना बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। साथ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पानी पीने के लिए दुकानों में आते हैं, तो दुकानदार उनको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तंग होते हैं और कस्टमर भी परेशान होते हैं। जाहिर है बच्चे हैं, शरारतें भी करते हैं, उनको प्यास भी लगी है। भाई कहीं कंप्लेन की है आपने? कंप्लेन भी की है, काफी दफा टीम आई भी है, तकरीबन 10-15 साल में बहुत दफा टीम आई है, लेकिन ये ऐसे बंद ही पड़ा है और बहुत अरसे से बंद पड़ा है। जी बिल्कुल, कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सके, बकायदा इधर जो है ताला लगा हुआ है और अंदर से जो कुछ टूटियां हैं वो गायब हैं और कुछ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है इंतजामिया को भी कंप्लेन की गई है। ऊपर स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ है। गंदगी है बस अंदर। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है दिखाने के लिए शायद बनाया गया था। यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं पानी पीने के लिए, उनके भी नहीं होता साफ पानी, तो उनको इतनी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल का सामना है। साफ पानी ही मयसर नहीं है पूरे इलाके में, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार, यहाँ के रिहायशी, यहाँ पे पढ़ने वाले, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे सब ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रही थीं। हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका, होटल में शदीद आग भड़क उठी। धमाके के बायस होटल के शीशे टूट गए, इमारत को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। होटल में शदीद आग भड़क उठी है। धमाके के बायस होटल के शीशे टूट गए, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 अफराद जख्मी हुए, फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाक सितर हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं
के हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। होटल में शदीद आग भड़क उठी। धमाके के बायस होटल के शीशे टूट गए। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 अफराद जख्मी हुए। फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाक से तर हो चुका है। हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। होटल में शदीद आग भड़क उठी और शीशे टूट गए। 4 मुलाजिमीन जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाक से तर हो गया। रेस्क्यू मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। होटल में शदीद आग भड़क उठी। धमाके के बायस होटल के शीशे टूट गए। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 4 अफराद जख्मी हुए। फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान खाक से तर हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी मलिक अब्दुल रशीद, बताइएगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर रॉयल किचन होटल पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे होटल के जो शीशे टूट गए और उसके साथ ही होटल के अंदर जो है वो शदीद किस्म की आग लग गई। आग लगने की वजह से अमले के तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में रेफर कर दिया है। और इस वक्त रेस्क्यू 112 का अमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी है और गैस सिलेंडर का धमाका इतना शदीद था कि होटल के तमाम शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद, अपडेट कर रहे थे। हासिलपुर के रॉयल किचन होटल में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। होटल में शदीद आग भड़क उठी। मुल्तान में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान बच्चों ने मौज मस्ती के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। इतवार की छुट्टी के रोज बच्चों की बड़ी तादाद पार्क्स में खेल कूद में मसरूफ। कोई क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रहा तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है। इस बारे में मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में इतवार के रोज़ जो है वो खेलों के मैदान आबाद हो चुके हैं। इस वक्त मैं एक ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा कि क्रिकेट है, बैडमिंटन है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियाँ भी हैं और मौसम भी बेहतर है, धूप निकली हुई है और ऐसे में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो मुख्तलिफ़ खेल खेल रहे हैं। जी आप बताएँ, इतवार का दिन है तो कैसे गुजारते हैं स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में? हम बहुत अच्छा गुजारते हैं और सारा दिन खेलते रहते हैं। मतलब इतवार के दिन पढ़ते भी है साथ साथ, और इसको खेलना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और हमें चाहिए कि पढ़े भी सही साथ साथ और स्पोर्ट्स को भी ताज़ा रखे साथ। ठीक है जी, आप बताएं कौन सी गेम आपको पसंद है और इतवार के दिन ही खेलते हैं? जी इतवार के दिन ही खेलते हैं। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। मैं ये बच्चे छोटे होते से खेलता जाता हूँ और मैं बड़े होकर भी क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों के साथ कैसा लगता है गेम्स वगैरह खेल के? अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नौजवान खिलाड़ी भी हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि इतवार के दिन ख़ास तौर पर ऐसा दिन होता है जब सारा दिन फ्री होता है और सुबह से लेकर शाम तक खेलों के मैदानों में ही इनका गुजरता है, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो। और बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उससे दिमाग भी सेहतमंद रहता है और जिस्मानी तौर पर भी जो नौजवान हैं वो फिट रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। 11वें ऑल मुल्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच डोगर फुटबॉल क्लब और पैरा गायब फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। जावेद कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। इस मौका पर नए साल की आमद की मुनासबत से केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल साल 2026 के आगाज के साथ ही खेलों के ग्राउंड में भी जो है वो रौनकें बहाल हो चुकी हैं। 11वां मुल्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच जो है वो खेला जा रहा है। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में जावेद कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक है और साल 9 के हवाले से जो केक है वो भी
आज खिलाड़ियों के जाने से जो है वो काटा गया है। मियां जावेद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। मुल्तान के सारे फुटबॉल को 2026 की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि 2026 का पहला टूर्नामेंट है जो कायदम गोल्ड ट्रॉफी 11वां टूर्नामेंट यहाँ पर फाइनल है इसका, और फाइनल का चीफ गेस्ट हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसे 2026 लगा और टूर्नामेंट का फाइनल आ गया, ये यंग न्यू मुल्तान फुटबॉल क्लब ने टूर्नामेंट कराया हुआ है और बड़ी रौनक लगी हुई है। यहाँ पे बड़े तमाशे आए हुए हैं, बड़े प्लेयर आए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह 2026 में इंशाल्लाह हम ज़्यादा टूर्नामेंट कराएंगे। इसके फौरन बाद इंशाल्लाह एक स्पोर्ट ग्राउंड में चौधरी शफकत हमारे नायब सर होते थे, उनके नाम का हम टूर्नामेंट इंशाल्लाह करा रहे हैं। अगले दिन में इंशाल्लाह उसको शुरू हो जाएगा और हम ज़्यादा जितना भी ज़्यादा होगा यूथ को ग्राउंड में लेकर आएंगे, ज़्यादा टूर्नामेंट कराएंगे। इंटरनेशनल फुटबॉलर राना बाकी साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे फुटबॉल की बहाली के हवाले से, क्या इक़दाम? भाई जी, हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे आप? कुछ भी नहीं कर रही है हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, और फुटबॉलर बेचारे बेआसरा फिर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के मियां जावेद कुरैशी हैं जो मुल्तान के फुटबॉल को सहारा दिए हुए हैं, और हम वक्फे से टूर्नामेंट कराते रहते हैं और ये चीफ गेस्ट बनते रहते हैं। ठीक है, ये आज आल मुल्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड का जो टूर्नामेंट है उस हवाले से जो केक है वो भी जो है वो रोही के हमरा जो है वो काटा जा रहा है, और इस अज़म का इजहार भी जो है वो किया जा रहा है कि साल 2026 में खेलों के फ़रोग़ के लिए जो है वो मजीद टूर्नामेंट्स भी करवाए जाएंगे, और उसके साथ साथ हुकूमत से भी ये मुतालबा किया गया है कि वो खेलों के ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात ऑपरेशन से रेड़ीबान परेशान। मुल्तान में सिर्फ घंटाघर चौक पर वाहिद रेड़ी बाजार कायम किया गया, मुतादिद रेड़ीबानों को जगह न मिल सकी। खानेवाल में अंदरूने विहाड़ी अड्डे पर कायम रेड़ी बाजार कामयाब न हो सका। डीजी खान, रहीम यार खान, मियांवाली समेत दीगर शहरों में रेड़ी बाजार कायम कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पैरा फोर्स अपने क्याम के बाद मुल्तान में मुतारिक रही। गुलगश पोसन रोड, डबल फाटक, सब्जी मंडी को तजावुजात से पाक किया गया। सड़कें ज्यादा हुई लेकिन रेड़ीबान परेशान दिखाई दिए। रेडियो को मॉडल टाउन रोड और डबल फाटक से हटाया गया लेकिन इन्हें मुतबादिल जगह नहीं दी गई। मुल्तान के सिर्फ घंटा घर चौक पर वाहिद रेडी बाजार कायम किया गया। मुल्तान में कोई भी मॉडल बाजार नहीं लगाया गया। अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ में मॉडल बाजार कायम किए गए हैं जहां पर एक छत तले मुख्तलिफ अशिया की दुकानें मौजूद हैं और शहरियों को सरकारी नर्ख पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। खानेवाल में अयूब रोड और चौक संगलावाला में रेडी बानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुतासरा रेडी बानों के लिए अंदरून विहाड़ी अड्डे पर रेडी बाजार कायम किया गया। 80 रेडियां लगाई गई हैं लेकिन बाजार कामयाब न हो सका। डीजी खान में सड़कों को खुशादा करने के लिए ट्रैफिक चौक, मॉडल बाजार और तौसा शरीफ रेडी बाजार कायम किए गए। इन इक़दामात से सड़कें खुशादा हुई, ताहम रेडी बानों ने अपने मसाइल से मुतालिक मौक़िफ़ भी पेश किया। रहीम यार खान में पुल सुन्नी पर एक रेडी मॉडल बाजार फंक्शनल किया गया। कानपुर में 2 मॉडल रेडी बाजार पर काम जारी है। बाजारों को व्हीकल फ्री करार देने और मॉडल बाजार कायम करने के लिए काम जारी है। मियांवाली में भी मरियम नवाज मॉडल रेडी बाजार बनाया गया। बाजार में 56 रेडी बानों को जगह दी गई। राजनपुर में जिला इंतजामिया ने मजदूर तबका के लिए जामपुर में रेडी बाजार कायम कर दिया। ताहम रेडी बाहम इंतजामिया की सख्ती पर नाला हैं। कहते हैं गरीबों को चलते फिरते रोजगार करने दिया जाए। मुजफ्फरगढ़ में साल 2025 में 2 रेडी बाजार भी कायम किए गए। एक रेडी बाजार गिरजाघर चौक के साथ कायम किया गया, दूसरा बाजार प्रेस क्लब के अतराफ में कायम किया गया है।